Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agrawal here again with another set of actual questions from CUT PG meant for admission to MCA and another allied courses. I've already explained it many times like MSc UR, MSc Cyber Security, MSc Computer Science in very good universities like DU, JNU, Jamia Millia Islamia, BHU and almost all the central universities. And moreover, if you do MCA from these central universities, then the duration of the MCA is only 2 years. As compared to MCA from NIMSET which is 3 years. Okay, और दोनों qualifications की value same है, तो it means you should also appear in CUET along with NIMSET. तो किसी lecture में मैं discuss करूँगा इनके advantages, disadvantages like CUT versus NIMSET. I'll be discussing this just to give you a fairly good idea. But students have a bias towards NIMSET. They want to appear in NIMSET, so you should always appear in NIMSET, you know, NIT, IITs, then NITs. IIT Roorkee was one of the best MCAs, but IIT Roorkee ne, and at that time Sanmax started it in 1994. Sanmax started MCA coaching in 1994 at Karol Bagh. And then the major selections in IIT Roorkee MCA were from Sanmax only. And at all other places like DU also, 30 में से 29 seats. It was just like that, you know. And फिर IIT Roorkee ने इसे discontinue कर दिया and DU became a part of CUT from 2022. The placements are really good at DU. And the systems and everything is good at DU, JNU. JNU is another prestigious institution, everybody knows, okay. तो चलिए ये सेट शुरू करते हैं. पार्ट 16, पार्ट 15 तक ऑलरेडी हो चुका है. हर पार्ट में हम 5 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. सो ऑलरेडी यू हैव डन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद मी एंड दीज आर ऑल एक्चुअल प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर इन CUT. और खाली CUT में प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं है खाली CUT के लिए इंपॉर्टेंट है. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंसेस व्हिच आर इन्वॉल्विंग हायर मैथमेटिक्स. ओके, एनी entrance, whether it is civil services or it is GATE or NET or JEE Mains or your NIMSET, everywhere these questions are important. That style and that approach is also important. Okay, तो यदि आपको competitive approach आ जाती है, सीख जाते हैं, तो you can use it anywhere, even in your professional life also once you become a software professional. Okay, चलिए इसे शुरू करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, slightly lengthy. देखते हैं इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट हम सब जानते हैं कि कॉसिकेंट से ज्यादा हमें आसान रहता है साइन से डील करना है. कॉसिकेंट थीटा इज 1/sin थीटा. तो सबसे पहले हम इसे चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो कंफर्टेबली करते हैं इसे. 1/sin ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 and 1/, that's one and the same thing whether you write 1 again or not. ओके, ये आ गया एंड साथ में साइन थीटा प्लस m π/4 and the right hand side you are having 4√2. you are having 4√2, but क्योंकि थोड़ी बहुत हमें मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी यहाँ पे बिकॉज वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. अब नीचे साइन डिनोमिनेटर में आ गया, उससे भी हमारी हेल्प नहीं मिलेगी. समेशन आ गया, तो अल्टीमेटली हमें इन 6 वैल्यूज को कंप्यूट तो करना ही पड़ेगा. m को एक बारी 1 पुट करेंगे, 2 3 4 5 6 सबको ऐड करेंगे. सो वी वांट इट इन ए प्रॉपर फॉर्मेट. ओके, तो √2 इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने यहाँ पे √2 ले लिया और हम एडवांटेज क्या उठाएंगे 1/√2. मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज ऑलवेज साइन π/4 इज 1/√2. और आप लोगों को याद होगा जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. बट यहाँ पे तो फॉर्चुनेटली √2 राइट हैंड साइड पे था, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए. अब 1/√2 को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे आप देखिए. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आ जाएगा. दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1 to 6 और आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे साइन थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस m-1 π/4. अभी आप देखिएगा कि इस मैनिपुलेशन से आपको फायदा क्या होगा. एंड डिनोमिनेटर इज सेम एज अर्लियर, साइन थीटा प्लस m-1 π/4 into sin theta plus m π/4 and your right hand side is 4. देखते हैं इससे क्या हुआ. देखिए ये साइन थीटा है, इस थीटा ने इस माइनस थीटा को कैंसिल कर दिया. इसे मैं पूरा बना देता हूँ. ये थीटा है, ये थीटा इस माइनस थीटा को कैंसिल कर रहा है. ये m π/4 ये माइनस ये m π/4 को कैंसिल कर रहा है. यहाँ से आया m π/4, यहाँ माइनस m π/4 से कैंसिल कर दिया.
ये माइनस और ये माइनस प्लस पाई बाई 4, तो बेसिकली जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट साइन पाई बाई 4, एंड ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, तो इस 1/√2 को हमने इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया, करा कुछ नहीं है, नीचे वाले जो इनपुट्स हैं उन्हें उठा के हमने ऊपर डाल दिए, जिससे हमें सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा। और अब तो आपको बहुत आराम से स्ट्राइक कर सकता है, ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी, व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर नीचे की चीजें कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको मिल जाएगा प्यारा सा, जिससे आप इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। फॉर्मुलेस मैंने पहले भी एडवाइस करे थे, रोज की हैबिट बनाइए 5 फॉर्मुलास। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री बट ऑल द टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, whether it is integration or differentiation or coordinate geometry, okay? 5 फॉर्मुलेस आप रोज याद कीजिए और अगले दिन उसे रिवाइज कीजिए पिछली दिन के फॉर्मूलास के साथ। तो यदि ये हैबिट आप डेवलप करेंगे तब आप आराम से सारे फॉर्मुलेस आपके टिप्स पे रहेंगे, और यदि फॉर्मुलेस याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम तो है ही आपको, ओके? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे हमने देखा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, ये साइन ए इस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस बी अपॉन साइन ए कॉट आ जाएगा, ओके? तो मैं यहीं पे लिखना शुरू कर देता हूं, तो दैट विल बी, यहाँ ये लाइन खींच गई ऐसे, एंड आई विल राइट इट हियर इटसेल्फ। फिर हम नेक्स्ट पेज में मूव कर जाएंगे, m इज इक्वल टू 1 to 6 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए से ए कैंसिल, कॉस बी अपॉन साइन बी, सो दैट इज कॉट थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ओके? ये आ गया एक तो ऊपर। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन बी से ये कैंसिल हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, ओके? क्लियर है सब लोगों को? कहीं कोई डाउट किसी को? तो यहां पे आ जाएगा माइनस कॉट थीटा प्लस एम पाई बाई 4। एक बारी और फॉर्मूले के हिसाब से देख लीजिए, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड दैट होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 4। यहीं पे प्रोसीड करते हैं जिससे आपको सिंप्लीफिकेशन आसान रहे। अब आपने पुट करना शुरू करा, जब से पहले हमको पुट करा 1 माइनस 1 0, तो यहां से आपके पास आ गया कॉट थीटा, ठीक है? अब आपको आपने m यहाँ पे 1 पुट करा, तो माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4, बट जब आपने m को यहाँ 2 पुट करा तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 पाई बाई 4, तो ये जो पिछली बारी में पाई बाई 4 मिला था कॉट थीटा प्लस एम पाई थीटा प्लस पाई बाई 4, वो नेक्स्ट टाइम इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये सारे कैंसिल होते रहेंगे, खाली आखिरी वाला आपके पास आएगा माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4। आप चाहें तो सारे को लिख के देख सकते हैं, बट सारे को लिख के देखना एंट्रेंस में एडवाइजेबल नहीं होता, लाइक डेवलप दैट रिफ्लेक्सेस दैट शार्पनेस, कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इवैल्यूएट कर सके, और ऐसा हमेशा होता है। m को आपने 1 पुट करा, ये वेनिश कर गया, कॉट थीटा यहाँ से आ गया, बट जब आपने m को यहाँ पुट करा तो आपने माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 रखा है। जब अगली बारी m को 2 पुट करा तो यहाँ पे कॉट पाई बाई 4 आ गया, पहले से ऑलरेडी माइनस कॉट पाई बाई 4 था, अगली बारी कॉट पाई बाई 4 आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ऐसे सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, खाली बचेगी फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके पास आ गई कॉट थीटा प्लस कॉट दिस, विच गिव्स मी कॉट थीटा माइनस कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस पाई, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4, एंड आप सब लोगों को पता है कॉट 90 प्लस थीटा या कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 आ जाता है नेगेटिव, एंड इसका मतलब ये जो वाला पोर्शन है दैट इज नथिंग बट 10 थीटा, तो आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा कॉट थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है ना? सारे क्वाड्रेंट्स आपको याद होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, यू नो अबाउट दिस, एंड थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, ओके? सेकंड में व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, यू नो अबाउट इट, कॉस पाई माइनस थीटा, इस तरह आपको याद रखना है। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा। तो क्वाड्रेंट वाइज आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए सारे साइन की कौन सा साइन किस में होगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ओके? और 10 पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में साइन कॉस 10 तीनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, थर्ड में साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव 10 पॉजिटिव, और फोर्थ में आपका साइन नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव, ठीक है ना? कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, दैट्स एन इवन फंक्शन, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, आप इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? यू कैन चेक दीज थिंग्स।
और अब तो इस प्रॉब्लम में कुछ रह नहीं गया, यू कैन ईजिली डू दिस प्रॉब्लम। अब कॉट थीटा को लिख लीजिए 1/tan थीटा, और यहाँ पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 4, और ये क्वाड्रेटिक बन गई आपकी tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके आप आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं आराम से। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक एंड देन यू विल गेट योर आंसर। बट हम भी अगले पेज पे से ले जाते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक यू आर हैविंग। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इज 0। आप इसे यदि बना देते हैं tan थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर, तो आप देखिए क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 4 एक्स्ट्रा आ गया, उसे माइनस करना पड़ेगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज 0। इट मीन्स you know these manipulations, okay? tan theta minus 2 whole square minus √3 whole square is equal to 0। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए आप। सो tan theta माइनस 2 प्लस √3 एंड tan theta माइनस 2 माइनस √3 is 0। That is tan theta is 2 प्लस माइनस √3। और ये तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई होगा, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर करी है तो tan थीटा इज 2 प्लस माइनस √3। जब आपको सॉल्व करना है तो आपका एंगल आ जाता है थीटा इज π/12 एंड 5π/12। ठीक है, सो tan थीटा इज 2 प्लस माइनस √3 एंड देन यू हैव योर थीटा। क्लियर है सब लोगों को? तो देखते हैं आंसर कौन कौन सा हो गया। π/12, 5π/12 मीन सी भी सही है, डी भी सही है, तो आंसर इज सेकेंड चॉइस। बट येस, इट वॉज क्वाइट ए लेंथी प्रॉब्लम। बट लेंथी प्रॉब्लम भी एग्जामिनेशंस में आती हैं, इसीलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको टाइम सेव करना है उन प्रॉब्लम्स से जो डायरेक्टली और स्मार्टली करी जा सकती हैं, जिससे हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकें। बट सपोज मेरे पास और प्रॉब्लम्स हैं एग्जामिनेशंस में करने को, टाइम कम है, देन आई विल ऑलवेज लीव दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई नो एवरी प्रॉब्लम कैरीज सेम नंबर ऑफ मार्क्स। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 32। इज अनदर गुड क्वेश्चन। If sin beta is geometric mean between cos alpha and cos sin alpha and cos beta। geometric mean आपको पता ही है, यदि a b c gp में हो, as always I am writing it here, there in gp, then geometric mean is b square is ac। ठीक है ना? so b square is ac, you all know about it, so that is where comes the geometric mean। so if sin beta is the geometric mean, then sin square beta is sin alpha cos alpha। बट sin alpha cos alpha कब ज़्यादा अपीलिंग लगता है हमें? फॉर्मूले से याद हो हमें, तो 2 जब 2 sin alpha cos alpha हो, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta। और जैसे मैंने पहले भी एडवाइस करा है अपने स्टूडेंट्स को, आप सबको, कि आप लेफ्ट टू राइट भी फॉर्मूला याद करेंगे और राइट टू लेफ्ट भी याद करेंगे। sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, बट आपको एट द सेम टाइम ये भी याद होना चाहिए 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें रिवर्स में फॉर्मूला अप्लाई करना होता है एग्जामिनेशंस में टू बी एबल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ओके, तो वही अप्रोच अब अडॉप्ट कीजिएगा 2 sin square बीटा। बट अगेन 2 sin square बीटा आपको चाहिए cos 2 बीटा। हम देखते हैं cos 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। एंड आई होप आपको याद है cos 2 बीटा इज 1 माइनस 2 sin square बीटा। तो चीजें तो आपके सामने क्लियर हो ही रही हैं। ओके, तो दैट इज sin 2 अल्फा। यहां तक हम आ गए। मैंने दोनों तरफ ले लिया 1 माइनस 2 sin square बीटा इज 1 माइनस sin 2 अल्फा। यहां तक आ गए। इट्स सो इजी, यू नो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। सो इट मीन्स cos 2 बीटा एंड व्हाट इज 1 माइनस sin 2 अल्फा। 1 माइनस sin 2 अल्फा इज, अब 1 की जगह आप लिख लीजिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और माइनस sin 2 अल्फा को आप चाहें तो फिर माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा से काम चल जाएगा। मेरा वही एडवाइजेबल है, माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो इट मीन्स माई राइट हैंड साइड इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर। तो इनफैक्ट मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी sin 2 अल्फा, ओके, क्योंकि यहाँ से प्रोग्रेशन मुझे दिखाई दे ही रहा था। जैसे मैंने 1 लिया तो 1 से मैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा, और ऊपर से माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा बना दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो मेरा cos 2 बीटा इसके बराबर आ गया। और इस तरह के फॉर्मेट में आपको हमेशा याद होना चाहिए, जैसे मैंने पिछली भी प्रॉब्लम में करा था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 1/√2। ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ 1/√2,
क्योंकि ऊपर स्क्वायर है इसलिए अंदर 1/√2 लिया, 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और इसलिए 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको पता है अब इसे आप कैसे पढ़ सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी भी पढ़ सकते हैं, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइन π/4 भी 1/√2 होता है और कॉस π/4 भी 1/√2 होता है। ओके, तो हमने यहाँ चॉइसेस देखी, हम पे साइन की चॉइस भी है, कॉस की चॉइस भी है, तो हम दोनों ही ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, और 2 तो बाहर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 2 cos π/4 cos अल्फा माइनस साइन π/4 साइन अल्फा होल स्क्वायर, और द अदर वन इज, ये तो मैंने cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी ले लिया, आप ले लीजिए साइन ए cos बी, साइन π/4 cos अल्फा माइनस cos π/4 साइन अल्फा होल स्क्वायर। क्लियर है? सो इट मीन्स cos ए cos b minus sin b sin b is cos a plus b, that is cos of π/4 प्लस अल्फा, और ऊपर का स्क्वायर यहाँ आ गया। आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा होल स्क्वायर, और 2 साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b इज साइन ए माइनस b। तो चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है। सो दिस आंसर इज मैचिंग विथ चॉइस 1, सो चॉइस 1 इज द राइट आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी बारी कैलकुलेशंस और सिंप्लीफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए फॉर्मूलाज का याद रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम आने का मतलब है यू विल बी टेकिंग मोर टाइम देन डिजायर्ड, और बिना फॉर्मूले के सिंप्लीफाई करना भी मुश्किल रहेगा आपके लिए। देन आ गई प्रॉब्लम 33। आई थिंक ये तो देखते ही आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि एक्चुअली इसमें करना क्या है आप लोगों को। आप इसको देखिए, पहले सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को देखना शुरू करते हैं। नीचे ई को हम देख ही रहे हैं, बट ई के अलावा जो ऊपर है उसे देखते हैं। और आप सबको पता है log a प्लस log b होता है log ऑफ ab, तो आई कैन राइट इट एज e log 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, और चलते रहते हैं। अभी मैं साथ ही साथ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 10 45 डिग्री 44 डिग्री 10 45 डिग्री, और आप ऐसे ही चलते रहिए 10 89 डिग्री। ऑब्वियसली 90 डिग्री नहीं होगा, 10 90 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड भी कहते हैं बहुत लोग, बट वैसे हम इन्फिनिटी पे जो चीज़ आती है उसे नॉट डिफाइंड हमें कहना नहीं चाहिए हायर स्टडीज़ में। नॉट इन्फिनिटी मीन्स नॉट अटेनेबल, बट नॉर्मली लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं, बट यू शुड नो दैट इट इज़ नॉट अटेनेबल, समथिंग विच इज़ बियॉन्ड माई रीच। ओके, इन्फिनिटी कि कोई चीज़ इनफाइनाइट लेवल पे मीन्स बियॉन्ड माई अचीवमेंट, बियॉन्ड मीन्स आई एम नॉट एबल टू अचीव इट इज़ बियॉन्ड माई लिमिट्स। यहाँ तक आ गए। 10 45 हम सबको पता है 1 है, ये हमने क्यों करा होगा। अब देखिए 10 90 माइनस 1 इज 10 इज cot 89, 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि cot हमारा कैंसिल कर दे, तो हम इसे लिखेंगे करिए, इसे सिंप्लीफाई करिए, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो बेसिकली हमने कैसे सिंप्लीफाई करा इसे, देखो ये जो 10 89 है इसे मैं लिखूंगा 10 90 माइनस 1 दैट इज cot 1, और ये cot 1 इस 10 1 को कैंसिल कर देगा। तो पेयर्स में इस तरह चीजें कैंसिल होती जाएंगी, आखिरी वाले से पहली वाली, सेकंड लास्ट से सेकंड वाली, थर्ड फ्रॉम द लास्ट से थर्ड वाली, फोर्थ फ्रॉम द लास्ट से फोर्थ वाली। टोटल एंट्रीज कितनी है 89, खाली 45 10 45 रह जाएगा। ये जो पहली की टर्म्स हैं ये इसके बाद की टर्म से सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। 10 89 इज 10 90 माइनस 1, 10 90 माइनस 1 इज cot 1, cot 1 into 10 1 is 1. Are you getting what I am saying? And 10 45 we all know is what? Sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, 10 45 is 1. So it comes out to be e log 1 to the base 10. And log 1 to the base 10 we all know is 0, and e raised to 0 is 1. So what my answer is? Fourth choice. So it's a very good example. So whenever you have such an example, आप डायरेक्टली इसे evaluate कीजिए, ठीक है ना। डायरेक्टली आप इसे evaluate करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से, इसमें इतनी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर। Then comes my next example.
Given below are two statements, it seemed to be much easier. Given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Again, statement, assertion and reasons. If dot product and cross product of A and B are 0, then it implies that one of the vectors must be a null vector. That's obviously true. Okay. The दोनों product 0 and dot product आपको याद होगा A dot B is AB cos theta and A cross B is AB sin theta n cap, and n cap is the direction of A cross B. I'm just revising, nothing to do with here. Okay. A cross B is AB sin theta n cap, where n cap is direction of A cross B, which is nothing but perpendicular to the plane of both A and B. तो इस तरह आपके टिप्स पे सारी चीजें होनी चाहिए कि क्वेश्चन दिखाई दे, अपने आप रील चालू हो जाए आपके दिमाग में कि किस तरीके से रिजल्ट्स हैं इसके. इट मीन्स यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके. तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, कॉस प्रोडक्ट भी 0 है, इसका मतलब साइन भी 0 है, कॉस भी 0 है, इसका मतलब एंगल वो कॉस 0 और साइन 0 साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकते सेम टाइम पे 0 साइन एंड कॉस. इसका मतलब कम से कम एक वेक्टर ही 0 है. 0 वेक्टर इज नथिंग बट नल वेक्टर. तो पहली स्टेटमेंट सही है. समझ आ गया सबको. डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, साइन एंड क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है. आप डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट को 0 करना चाह रहे हैं तो साइमल्टेनियसली साइन थीटा एंड कॉस थीटा को 0 करना चाह रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल. ओके. जब साइन थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा 1 होता है, जब कॉस थीटा 0 होता है तो साइन थीटा 1 होता है, और -1 वटेवर. तो इसलिए कम से कम एक वेक्टर को 0 होना जरूरी है. नीचे नल वेक्टर इज अ वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड. ओके. ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड 0 होता है बट डायरेक्शन इंडिटरमिनेट होती है. जस्ट फॉर द रिवीजन सेक, जस्ट टू गिव यू मोर नॉलेज. ओके. कोई भी कभी भी आपसे पूछता है नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आप कहिए इट इज इनडिटरमिनेट, मींस इट इज अनसर्टन, मींस एनी डायरेक्शन कैन बी टेकन एज इट्स डायरेक्शन, बट नो डाउट इट्स मैग्नीट्यूड इज 0. तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बट सेकंड एंड फर्स्ट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सेकंड इज नॉट द रीजन फॉर फर्स्ट. सो आई विल से ओके बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है ना. यही आपकी स्पीड होनी चाहिए. कैलकुलेशन जहां सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा सा केयरफुल, और जहां पे खाली कॉन्सेप्ट है यू शुड बी वेरी फास्ट. ओके. एंड दैट शुड बी स्पॉन्टेनियस एज इफ इट इज ए पार्ट ऑफ योर मेमोरी. ओके. एज इफ इट इज ए पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, उस तरीके से रहना चाहिए. एंड देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, 35th. If n1 and n2 are two unit vectors and theta is the angle between them, then cos theta by 2. Cos angle आता है हमेशा डॉट प्रोडक्ट में, so I'll have to do something with the dot product. I know. Okay. तो थोड़ी देर के लिए यदि हम पहली चॉइस को उठा लेते हैं, n1 कैप n2 कैप मॉड होल स्क्वायर, हमने ये उठाया. और आपको पता ही होगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मतलब इसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट. तो इसका मतलब हो गया n1 कैप स्क्वायर प्लस n2 कैप स्क्वायर प्लस 2 n1 कैप n2 कैप कॉस थीटा. इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो आप मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, नहीं लगाइए, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू. और n1 स्क्वायर का भी मतलब होता है, आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. जस्ट ए स्केलर, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके. सो माई n1 स्क्वायर आप ऐसे लिखिए, दैट इज 1. तो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा. वेरी इजी प्रॉब्लम. दैट इज 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया ना, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एंड 2 इंटू 2 कॉस के थीटा बाई 2, हाफ द एंगल फॉर्मूला शुड बी ऑन योर टिप्स. और लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया n1 कैप प्लस n2 कैप होल स्क्वायर. और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो. तो राइट हैंड साइड हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. आप इस 4 को यहाँ से हटाइए, यहाँ पे ले आइए, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, आपको चाहिए कॉस थीटा बाई 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा. इट मीन्स 1/2 n1 कैप प्लस n2 कैप is cos theta by 2. And they just wanted to find cos theta by 2. So I know my answer is nothing but the first choice. Hardly 5 to 10 seconds. So that finishes this particular lot. There were some questions which are lengthy in this particular block. Okay. Especially those, especially the first one and the second one, which were using trigonometry. But all of the questions were direct, and the same is the situation, same would be the situation when you go and appear in the actual examination. So I have a lot of confidence in you when you go for the examination, and don't worry about the outcomes. Okay, once you are in the hall, it means आपको बस हॉल ही में परफॉर्म करना है. आपने कुछ पहले करा या नहीं करा, that is not going to play any role. Okay, whatever performance has to be there, that is to be there itself. Okay, so all the best for that. See you soon.